آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے ہیں کہ کبیروالا میں دریائے راوی کی بپھرتی موجیں ہیڈ سدھنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سدھنائی کو بچانے کے لیے بچاؤ بند کو توڑ دیا گیا۔ مائی سفورہ بند میں شگاف سے مزید 27 موضع جات زیر آب آئیں گے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے بشیر کاظمی۔ بشیر کاظمی، آپ بتائیے گا کیا تازہ صورتحال ہے وہاں پر، اور اس کے علاوہ وہاں جو علاقہ مکین ہے کیا انہیں حفاظتی طور پر کوئی بہترین مقامات پر، حفاظتی طور پر انہیں جن جگہوں پر جانا چاہیے وہاں پہنچایا گیا کیا؟ ہاں جی بالکل، کبیروالا میں اگر بات کی جائے تو دریائے راوی اور دریائے چناب کی بڑھتی ہوئی موجوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس وقت اونچے درجے کا، انتہائی اونچے درجے کا یہاں پر سیلاب ہے۔ اس میں نئی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پانی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو دیکھتے ہوئے مائی سفورہ کے مقام پر بند کو توڑ دیا گیا ہے، دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، جس سے جو پانی ہے وہ 27 کے قریب مواضع جات ہیں جن کو متاثر کرے گا، لیکن ان کے متاثر کو بھی تقریباً جزوی طور پہ متاثر کرے گا۔ پانی کے دباؤ کے وجہ سے اگر بات کی جائے تو اس بلاسٹ کے بعد جو پانی کا دباؤ ہے وہ دریائے راوی میں کافی حد تک اس میں آنے والے چند گھنٹوں میں کمی آئے گی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ 1,70,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا تھا پانی کا اخراج، جس کے بعد انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو بند کو توڑ دیا جائے، کیونکہ جو شہری آبادیاں تھی جن میں عبدالحکیم، سائے سدو اور جو دیگر علاقے تھے ان کا بھی زیر آب آنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، بپھرے دریاؤں کا غصہ کم نہیں ہوا، بے قابو موجوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہے۔ چناب، راوی، ستلج کے اطراف بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں۔ چناب کے بپھرے سیلابی ریلے سے ملتان میں تباہی ہے۔ ہیڈ تریموں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، کئی بستیاں خالی کرا لی گئی ہیں۔ تلمبہ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، تمام عارضی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ ملتان انتظامیہ نے 5.5 لاکھ متاثرین کو ریسکیو کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شکیل سلطان سے جو ملتان میں موجود ہیں۔ شکیل، آپ بتائیے گا کس جگہ پر موجود ہیں، کتنا بڑا خطرہ ہے ملتان کے علاقے کو، اور حفاظتی طور پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، سیلاب کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب لوگوں کی نظریں ملتان پر ٹکی ہوئی ہیں اور ملتان ہائی الرٹ پہ بھی نظر آتا ہے۔ موجود ہوں، یہ ہیڈ محمد والا مقام ہے جس کو کل رات ہی خطرہ دیکھتے ہوئے بند کر دیا گیا تھا، اور مکمل طور پر دونوں جانب سے ٹریفک کے لیے بند ہے، اور سیکیورٹی کے تمام ادارے یہاں موجود ہیں اور افسران کے وزٹس بھی چل رہے ہیں۔ کل رات کو سرخ جھنڈا لہرایا گیا تھا جس کے بعد سے عوام میں بے چینی بھی بڑھ گئی۔ جبکہ پانی کے لیول کی بات کریں تو اس وقت جو یہاں پہ اکبر پور بند پر گیج لگائی گئی ہے اس کے مطابق پانی 410 فٹ تک پہنچا ہوا ہے، جبکہ اگر یہ 417 تک پہنچتا ہے تو خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ جبکہ جس طرح اس وقت ابھی کچھ ہی دیر پہلے عبدالحکیم میں وہ بند توڑا گیا، اسی طرح ملتان میں بھی عوام میں بے چینی ہے کہ ملتان میں بھی یہاں پہ بریچ کر کے روڈ کو توڑا جا سکتا ہے اور پانی کا اخراج جو ہے وہ یہاہاں سے کروایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو ہیڈ تریمو سے اعداد و شمار ملے ہیں اس کے مطابق تو وہاں سے پانی کا پریشر کچھ کم ہوا ہے، 4,34,000 تھا 6 بجے، جبکہ 10 بجے کی گیج کے مطابق جو ہے وہ کم ہو کر 3,99,000 ہو گیا ہے۔ جبکہ جو ایک بڑا ریلا جو جنوبی ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں راوی اور ستلج کا پانی بھی ہے، تو وہ راوی اور چناب کا پانی جو ہے وہ ملتان میں ہو سکتا ہے اور وہ تباہی پھیر سکتا ہے، تو اس سے عوام کافی پریشان نظر آتی ہے۔ اگر پانی کا لیول اسی طرح بڑھتا جاتا ہے اور 8 لاکھ کیوسک جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ملتان کو سہنا پڑ سکتا ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو انتظامیہ مکمل طور پر تیار نظر آتی ہے، یہاں پہ بریچ کر کے روڈ کو توڑا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے شکیل سلطان، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب محمود ظہیر ہے ہمارے ساتھ بہاولپور سے۔ محمود ظہیر، آپ بتائیے گا کہ بہاولپور کی بھی سراؤنڈنگ دریائے ستلج کے کنارے پر ہی واقع ہے، اور وہاں پر کتنے خطرات ہیں، کیا کوئی بستیاں خالی کرائی گئی وہاں پر؟ دریائے ستلج پر جو دریائی کنارے ہیں وہاں پر صورتحال خراب ہوئی ہے، اور خراب ہونے کے بعد فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے 27 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ میں اس وقت موجود ہوں خیرپور ٹامے والی اڈا اسرانی کے ایک فلڈ ریلیف کیمپ میں، جہاں پر درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ سیلاب متاثرین موجود ہیں۔ انہی لوگوں سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ لوگ یہاں فلڈ ریلیف کیمپ میں ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے؟ جی سارا کوئی ملتا پی ہے، ہر شے سہولت ہے، ہر شے عام ملتی پی ہے، سکون ہے، ساکو ہر پاس کوئی پریشانی کا نہیں، ساکو کہیں تفیلو بھی۔ ابھی میں نے وہاں دیکھا ہے اس میں کافی بھگدڑ تھی، پوری روٹی نہیں مل رہی تھی لوگوں کو۔
नहीं सर, रोटी सही मिल रही है माशाल्लाह, कोई मसला भी नहीं है बिल्कुल। कौन आ जाते हैं? वो ना हम जेड़े बंदे हैं ना उसको खाना बाद मिल रहे, दूसरे आ जाते हैं ना फिर। तो दूसरे भी तो सैलाब मुतासरीन है ना, आप लोगों के पास वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें खाना तो मिलना चाहिए। एक शिकायत यहाँ पर हम ज़रूर देखी है, हमने जो आपको बताना चाहेंगे, रोटी और खाने के हवाले से काफ़ी लोगों को शिकायत है, उन्हें नहीं मिली। ख़ास तौर पे वो लोग जो सैलाब मुतासरीन है लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा, जिसके हवाले से शिकायत है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उन्हें तमाम सहूलियात दी गई हैं। जी ठीक है, तो अब रुख करते हैं आरिफ वाला की तरफ, जहां पर शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा आरिफ वाला में कौन कौन से इलाके सैलाब की वजह से मुतासिर हो रहे हैं? क्या वहां पर जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हैं? आज जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो बिफरता जा रहा है। उसकी मूज़ और रेले जो इसके हैं वो दिन दीगर जो बस्तियां देहात हैं उनको मिलिया मेट करते हुए पानी जो है वो सैलाबी पानी अगली जानिब वो जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 9000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ 7500 के करीब जो मवेशी छोटे बड़े जानवर हैं उनको सैलाब निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इसी तरह 65 से ज़ायद जो देहात मौजाजात बस्तियां जो डेरे हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं, वो मिलिया मेट हो चुके हैं। किसानों की खड़ी जो कपास, धान, चावल, जो खासकर जानवरों के चारे की फसल है वो मिलिया मेट हो चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जो 4 फ्लड रिलीफ कैंप हैं उनमें खैमा बस्तियां भी कायम कर दी गई हैं और मुतासरीन को महफूज मकामात के बाद जो है उनके जो फ्लड कैंप हैं, खैमा बस्तियां बनाई गई हैं, उनमें मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं सियालकोट की जानिब, जहां से मियां मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मोहम्मद इशफाक, आप बताइएगा, सियालकोट भी काफ़ी मुतासिर हुआ है सैलाब से, क्या अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई वहाँ? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में होने वाली बारिशों के बाद एक दफ़ा से फिर दरियाए चनाब में हेडमाला के मकाम पर आने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 1,40,000 क्यूसेक का रेला हेडमाला के मकाम से गुजर रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात से ही शहर भर में मुसलसल जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। दरिया बात की जाए अगर शहर के अंदर से गुजरने वाले तीनों बरसाती नाले, नाला एक, नाला भेड़ और नाला पलखू की, तो वो इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ताहम दरियाए चनाब पर इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो दरमियाने दर्जे सैलाब की तरफ जो है वो बढ़ रही है। इस वक्त अगर बात की जाए दरियाए चनाब की तो वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ताहम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारे तमाम हर तरह की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो मुकम्मल तैयार हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं पसरूर की जानिब, जहां से औरंगजेब बेग हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, आप बताइएगा पसरूर की कैसी सूरत हाल है, क्या वहां पर सैलाब मुतासरीन तक मदद पहुंची? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ नाला डेक में और इस वक्त यहाँ पर से गुजर रहा है। इंतजामिया पूरी तरह चौकस हो चुकी है और रात के वक्त भी ये हमारे रेस्क्यू की टीमें और असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि हिफाजती इकदाम कैसे हैं और इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है। मैडम, थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त नाला डेक में पानी की क्या सिचुएशन है, कितना रेला गुजर रहा है? एक्चुअली जब ये आया ये 17,000 क्यूसिक था, उसके बाद बढ़ के 20,525 क्यूसिक हुआ। अब रिसीडिंग लेवल की साइड पे है और अब है 16,000 क्यूसिक पानी एट किंजरा पे। और लेकिन जो है हमारी ऑलरेडी जो 8 ब्रीचेज हो चुकी हैं नाला डेक के ऊपर। जी, असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिदरा साहिबा की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि उस तरह का जानी नुकसान इस इलाके में नहीं हुआ, ताहम फसलों का नुकसान हुआ है, जिम्मेदारों का नुकसान हुआ है। लेकिन पूरी तरह हम चौकस हैं और हमारी टीमें इस वक्त 24 घंटे फील्ड में मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार सामने से बचा जा सके। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करते हैं घोटकी की तरफ, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मीर जफरुल्ला। मीर जफरुल्ला, आप बताइएगा घोटकी के कौन से इलाके हैं जो सैलाब की जद में आए या सैलाब की जद में आने का खदशा है और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गुड्डू बैराज के बाद घोटकी दरियाए सिंध में मुसलसल पानी के बाद घोटकी का कच्चा मुकम्मल तौर पे ज़ेर-ए-आब आ चुका है, जिसके बायस फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, लोग अंदर फंसे हुए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से
ताहाल उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जबकि वजीर आला गुज़िश्ता रोज कादरपुर घोटकी के मकाम पे आए थे, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शेख बंद पर जहां पे आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कादरपुर शेख बंद को इंतहाई एहसास बंद करार दिया है, क्योंकि ये बंद 9 लाख पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस वक्त कादरपुर शेख बंद पे भी पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे नोटिस लें और इस बंद का भी काम किया जाए फौरी, और साथ साथ जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनकी भी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हमारे नुमाइंदगान पंजाब भर से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया कि सैलाब मुतासरीन कितने वहाँ मुतासिर हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर कितनी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दरियाओं की बेरहम मौजों को तरस नहीं आया। कई बस्तियाँ उजाड़ दी, फसलें तबाह हो गईं, माल मवेशी सब दरिया बुर्द हुए। रावी, चनाब, सतलुज मजीद रैलों की जद में है। कबीरवाला, झंग, लोधरा, बहावलपुर कई इलाके इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, लोग इमदाद के मुंतज़िर भी हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि सैलाब की वजह से वहाँ पर इमदाद के मुंतज़िर जो लोग हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी कुछ सामने आई कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मदद के लिए इंतज़ामिया पहुँची भी है और इंतज़ामिया की जानिब से जो तमाम मदद का इंतज़ाम किया गया वो भी बेहतरीन किया गया, जिस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है। तो नाज़रीन, अभी आपको अपडेट कर रहे हैं इसी सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक। तो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ये है कि हमारे नुमाइंदगान मज़ीद जो हमें इस हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं, मज़ीद बताएंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे और हम अभी रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इश्तियाक रबानी शकरगढ़ से हैं, इमदाद अबूज़र सक्खर से, फरहान एजाज जफरवाल से, हमीद कसूरी कंगनपुर से, रज़ा हसन हेड पंजत से और कासिम अली शेख भावल नगर से। तो सबसे पहले भावल नगर रुख करते हैं, जहां पर कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम अली, आप बताइएगा भावल नगर के कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हो रहे हैं सैलाब की वजह से, और वार्निंग या अलर्ट किन इलाकों के लिए जारी किया गया है? जी बिल्कुल, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रवां दवां और इस वक्त हम मौजूद हैं हेड पंजत के मकाम पर। पंजत को पंजत इसलिए कहा जाता है कि पंजाब में बहने वाले तमाम दरिया, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, सबका पानी यहाँ से गुजर कर ही यहाँ से 30 किलोमीटर आगे सरकिया के मकाम पर दरिया सिंध में जो है वो जम हो जाता है और वहाँ से वो ग्रेटर सिंध जो है वो बन जाता है। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पंजत पर जो है वो पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है और 54 इसके दरे हैं, जिसमें से 8 इस वक्त खोल दिए गए हैं। मजीद दरें खोल दी जाएंगी ताकि पानी का जो बहाव है उसका सिलसिला, पानी का जो अखराज है उसका सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। इस वक्त हर गुजरते घंटे में जो है यहाँ पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है और सैलाबी रेलों की जो आमद का सिलसिला है वो यहाँ शुरू है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया है। अब रुक करते हैं हमीद कसूरी की तरफ जो कंगनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद, आप बताइएगा कंगनपुर के कौन कौन से इलाके मुतासिर हो रहे हैं, कौन से इलाकों को खतरा है इस वक्त? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी दरिया सतलुज के किनारे कोठी फतेह मोहम्मद के साथ एक गांव है मोहम्मद। नाज़रीन, यहाँ पर भी जो सैकड़ों की तादाद में जो ज़रई रकबा था वो ज़ेरे आब आ चुका है। जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। कितनी फसलें आपकी तबाह ज़ेरे आब हो चुकी हैं? हमारी जो दरिया के दूसरी साइड पे थी वो तकरीबन 2 मरबे पानी ने अपने अंदर ले ली है और दरिया की उरले किनारे पे हमारा जो रकबा था उसमें से 8 और 9 एकड़ उसने गिरा के अंदर कर लिया है। तो मैं ये हुकूमत पंजाब को कहना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार के नुकसान हुए हैं उसका अदाला होना चाहिए। इनका मुतालबा है, इनकी अपील है कि किसानों का ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मोहतरमा जो मरियम नवाज शरीफ साहबा, ज़रूर इन किसानों के बारे में सोचें। इनका जो नुकसान हुआ है, अभी जो पानी की जो शिद्दत है, पानी एक बदतरीन सैलाब की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और ये जो रकबे बकाया हैं ये काफ़ी नुकसान होने का खदशा है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। अब रुक करते हैं भावल नगर की जानिब, जहां से कासिम अली शेख हमें अपडेट करेंगे। कासिम अली शेख, आप बताइएगा भावल नगर को भी हाई अलर्ट रखा गया था, उसके इलाके भी काफ़ी शदीद खतरे की लपेट में थे, तो वहाँ क्या ताज़ा सूरत हाल है? दरिया सतलुज के बड़े रेले की बड़ी तबाही कारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरफ वाला रोड पर। एक बंद है जो कि टूट चुका है। सबसे पहले हम इस बंद की सूरत हाल दिखाते हैं कि ये बंद जो है यहाँ से टूट गया, जिसकी वजह से ये जो पानी है ये यहाँ से
चक मियाँ माड़ी साहब, चक भट्टियाँ, इसके अलावा कादरिया वाली मिल और जो शहर के गिर्द आबादियाँ हैं उनमें ये पानी किसी वक्त भी दाखिल हो सकता है। तो बड़ी शदीद सूरत हाल है। आप बताइएगा, इस बंद के मुतालिक कहा जा रहा था कि ये टूट जाएगा, इसको मजबूत किया जाए। जी, ये जब से पानी आया दरिया में तब से हम इनको चीख रहे हैं कि ये बांध टूटने वाला है, इसके लिए खुदारा कुछ करें। ये बहुत सारी फसलें हैं, किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो ये आपके सामने ये टूट चुका है। जो है वो हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे मौजूदगी में भी जो है ये बंद जो है इसका फैलाव मजीद बढ़ता जा रहा है। पानी की वजह से उन्हें शदीद खतरात हो गए। तो इस तरह जो है वो एक और जो है बंद टूट गया और ये बंद बिल्कुल आरिफ वाला रोड पर आरजी बंद था और इस बंद के टूटने से जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा आबादियां मुतासिर होंगी। ठीक है, रुक करते हैं शकरगढ़, जहां पर इश्तियाक रब्बानी मौजूद हैं, वो हमें अपडेट करेंगे। इश्तियाक रब्बानी, आप बताइएगा शकरगढ़ के कौन कौन से इलाके मुतासिर हो रहे हैं? क्या इमदादी कार्रवाइयों का भी वहां पर कोई बेहतर इंतजाम देख रहे हैं आप? शकरगढ़ में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कभी रुक जाती है और कभी तेज हो जाती है। वक्फे से जब बारिश 24 घंटे से ज्यादा हर तरफ जल थल कर चुकी है, तो दूसरी जानब जम्मू कश्मीर में भी यही बारिशों का जो सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ के नाला बेई के अतराफ में। मेरे पीछे हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। नाला बेई में इस वक्त 20,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है, जिसमें बतदरीज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस पानी के बहाव के तेज़ी की वजह से मुतअद्दिद देहात के मकीन जो हैं वो इस पानी के कटाव की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। का ये भी कहना है कि हमारे लिए हुकूमत से मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें भी दी गई और उन्हें वाह बेला भी किया गया कि कोई बारिश के बायस हमारे लिए कोई छत का सामान किया जाए, कहीं कैंप में मुंतकिल किया जाए। बेयार और मददगार हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़र दिखाई देते हैं। जी ठीक है, अभी हम रुक करेंगे ज़फ़रवाल की जानिब से, जहाँ से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं कि ज़फ़रवाल में माल मवेशी या ज़रई ज़मीनें, इलाका मकीन किस हाल में है? शुक्रिया जी, मैं आपको बताता चलूँ, नाला डेक की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। आज नाला डेक में जो 132 किलोवाट का ट्रांसमिशन वो भी गिर गया, जिसकी वजह से ज़फ़रवाल और ज़फ़रवाल के इर्द गिर्द 15 जो ग्रिड के अंदर आने वाले फीडर हैं वो बंद हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इन 15 फीडर की वजह से को 500 के करीब जो देहात हैं वो इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। 1.25 लाख के करीब जो घर हैं जहाँ पर ये मीटर कनेक्शन लगे हुए थे, जो इस बिजली को इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो अंधेरे में डूब चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि नाला डेक में आने वाले इस पानी की वजह से 132 किलोवाट की जो लाइन जिस टावर से गुजर रही थी वो बिल्कुल नीचे गिर गया। अभी इसको महकमा वापडा के जो तकनीकी डिपार्टमेंट है, उनका ये कहना है कि जी इस फॉल्ट को दूर करने के लिए, इस टावर को दोबारा खड़ा करने के लिए एक लंबा टाइम दरकार है, लेकिन हम लोग मुतबादल ज़राए जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुतबादल ज़राए के ऊपर भी अगर बात की जाए तो उसको भी कम अज़ कम 10 घंटे लगेंगे कि ज़फ़रवाल जो है अंधेरों से बाहर आ सके। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। रुक करते हैं सखर की जानिब, जहाँ से इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद बुज़दार, आप बताइएगा, क्या सखर तक भी सैलाबी रैले पहुँच चुके हैं और वहाँ की आबादियों को कितना ख़तरा है? जी बिल्कुल, अगर हम दरियाओं की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों में पड़ने वाली बारिशों के बाद जिस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने कई इलाकों को मुतासर किया, इस तरह ये जो पंजाब का पानी है जो कि इंडिया ने छोड़ा था, वो पानी प्लस जो बारिश का पानी है वो दरियाए पंजाब के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ टिम्मू के मकाम पर पहुंचा, जहां से 5.5 लाख क्यूसेक का जो रेला था वो गुजर कर अब पंजनद के मकाम पर पहुंचा है। पंजनद से ये पानी गुड्डू बैराज और इस तरह फिर सक्कर बैराज से कोटरी बैराज तक जाएगा। पानी की आमद का जो सिलसिला है उसमें अब इजाफा होता शुरू हो गया है। 6 लाख से 6.5 लाख क्यूसेक पानी इतना ज्यादा नहीं है जिससे लोग परेशान हो या खुदा न ख्वास्ता किसी इलाके को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अलबत्ता दरिया के मुलहका जो इलाके हैं, जो कच्चे के इलाके हैं, वहाँ के लोगों को नकल मकानी के लिए कहा गया है, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा कि पंजाब भर के छोटे से छोटे इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।